Hope I'm audible and screen is visible to you. Okay, students, till now we have studied the object-oriented programming introduction, the basic concepts, all those 8 concepts in detail with real-world example, how they are implemented in technical way. Then we studied the basic C++ program so that you will get familiar with the structure and how a simple C++ program looks like. That's why we took 2 to 3 programs, basically printing hello world, addition, average program, and a simple program using class. And now we are studying the constructs of that program, means what are the components that makes up the C++ program. So in that, we are going to study the tokens, data types, and control structures. So basically, in the last lecture, we have already started this topic. We completed the tokens, which is the smallest individual unit in the program, means every single word that makes up the program. There are types of the tokens, these 5 types: keywords, identifiers, constants, strings, operators, different types of tokens. Keywords means reserved identifiers, these are them. And ये जो keywords होते हैं इनको आप as your function name, as your object name, मतलब जब आप प्रोग्राम लिखते हो तो आप इसको अपने वेरिएबल का नाम देने के लिए या फिर फंक्शन का नाम लिखने के लिए यूज नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रिजर्व्ड. Okay, so they are reserved for the purpose they are assigned in the standard library and can't be used as per your requirement. Okay, since it will generate ambiguity. So this you must know this keyword. Identifiers. Identifiers mean the names of the variable, functions, array, class, object given by the programmer in the program. Okay, but there are certain rules to be followed. क्योंकि ये चीज human being perform कर रहा है, so there has to be some rules whenever we are instructing humans. Okay, जैसे मशीन्स को भी इंस्ट्रक्शंस रहती है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही कोई चीज परफॉर्म करनी पड़ती है या फॉर्मूले के हिसाब से, वैसे ही ह्यूमन बींग्स अगर कोई कोडिंग कर रहे प्रोग्राम में तो देयर हैज टू बी सर्टेन रूल्स डिसाइडेड, राइट? एंड दीज आर सम रूल्स डिफाइंड फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर्स. Okay, so you have to give the names of the variable, function, array, class as per these rules only. And we have discussed these rules in the last lecture. Constants. Constant means the values which are fixed and do not change during the execution of program. And these are different types of the constants. We already discussed what type of digits or alphabetic characters combination we use. Basic data types in C++. This topic we started, and C++ data types basically are of 3 types. Among that, user defined data type, मतलब जो यूजर खुद से डिजाइन करता है इनसाइड द प्रोग्राम. बिल्ट इन डेटा टाइप्स मीन्स वो डेटा टाइप्स जो C++ लैंग्वेज जब डेवलप हुई थी तब बनाए गए थे, which were the part of that language. Derived data types means the combination of these two which are made up from derived from these two, user and built-in. So that is the derived. So data types means which type of data in C++ you can use or you can perform operations with. That's why you must learn the data type. We started with the built-in data types. Among that, integral and floating. ये हमने सबसे पहले देखा था. इंटीग्रल के भी 2 टाइप्स है, int, char, floating, float, double. By using certain modifiers like signed, unsigned, short, long, we have subsequent combinations and different data types from this built-in data type. And those we learned, we studied the void also. Today we are going to learn the user-defined data type, structure, union, class, enumeration, derived data type, array, function, pointer. Yes, these are the built-in data types. Integral and floating में हमने कैसे we use the modifiers signed, unsigned, short, long. And the sizes of these variables will depend on the compiler and computer you are using. They are not fixed in every, but most of these are the common and standard ones. Okay.
This table shows you the types and their sizes in bytes. So these are the combinations possible with the char, int, float, double by just preceding them with the modifiers like unsigned, signed, short. मतलब आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं अलग. अगर मैं आपको कैर डेटा टाइप दे दूंगा, आप क्या करेंगे उसमें, अनसाइंड कैर, साइंड कैर. ओके, सो कैर, अनसाइंड कैर, साइंड कैर, तीन डेटा टाइप बन गए. अगर मैंने आपको इंट बोला, इसके कॉम्बिनेशन करो अलग अलग, तो आप क्या करोगे, इंट, इंट के सामने जो हो गया अनसाइंड इंट, डिफरेंट डेटा टाइप, signed int, then short int, then unsigned short int, signed short int, long int, unsigned short int, long int, signed long int. Similarly for the float, then float may if you have to keep it as a float, no modifiers is there. But with the double, you can use the long modifier only. So double and long double. So just keep in mind which modifier is used with which one, and all of them are not applicable with the all four. Okay, so that's why you must go through this table and the respective bytes in size. You must remember at least this thing. And this is the range, means it is providing you the minimum value and the maximum value which can be assigned to this type of data. That is the meaning of the range. We learned the type void, right? We have started, no? We have completed the type void in the lecture we took on Saturday. So Saturday के lecture में हमने type void देखा था. Basically three uses. First, when the function is not going to return anything, then the data इसका return type void होता है इस function. अगर वो function कोई argument नहीं ले रहा है, तो वहाँ bracket में आपको empty रखने के बजाय वो bracket आपको क्या लिखना है वहाँ पे, standard practice बोलती है कि you must write void there. Okay. So these two are basic uses, and the third and the new that was we learned that was generic pointer. While declaring a generic pointer, you have to write void as a data type of such pointer. So void star gp मतलब gp का ऐसा pointer बन गया जो किसी भी data type के pointer की value hold कर सकता है. It can refer to. Okay. And we have also learned what is possible with the GP and what is not possible with the GP. So obviously we can assign some different type of pointers to the GP, but we cannot assign GP to the IP directly. अगर आप GP को मतलब ऐसे कोई भी void pointer है आपके पास, जैसे star ptr1, cast star ptr2, तो ये जो आपका generic pointer है, इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, ये C में चल जाएगा, ठीक है, वैलिड इन C, लेकिन ये C++ में नहीं चलता. C++ में you have to use the casting, okay, and you must be familiar with the casting operation. You have learned in CP, okay, in your first year subject, that how we perform the casting, that this void pointer will be converted into the char, and then it will be assigned to the char type of pointer. So that's why we need to first cast. मतलब उसके टाइप में लेके आओ पहले उसको, फिर असाइन करो उस वाले से. So that is the fast job of casting. So like this we perform the casting in bracket char star, and after completing the bracket name of the, this you have to use in case of the GP while assigning GP to some non-void pointer type. Okay. So that was the third and one of the important use of void in declaration of generic pointers. Next, we also studied structures and union. This belongs to the user-defined data type. As we completed built-in data types, उसमें integer, floating और void ये तीन आते हैं, ठीक है, built-in में. सेकेंड जो हमें डेटा टाइप पढ़ना है बेसिक C++ का, वो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब वो होते हैं जो यूजर खुद से डिजाइन करता है, प्रोग्राम में लिखता है अपने हिसाब से. ओके, एंड देयर इज नो limitations or rules or barring how he will construct his own data type. It all depends on him or her, the programmer, the way or as per the requirement he wants his data type to be. So that can be the best example. So going to start with ऐसे हम चार पढ़ने वाले हैं. इसमें data type, structure, union, class, enumeration. Students, I want you to take down the notes whenever you feel it
important or to be written so that you will be able to recall the concept. You just note down those things. You can write these examples also. If you don't know structure, अगर आपको लग रहा है कि हम भूल गए हैं सी में से कुछ, so you can have it. I am even providing you the syntax, though I shouldn't be, क्योंकि ये सी में हो चुका है, but I'm still providing you the syntax. You are going through that because it is somewhat related and to these things also, because most of the C things are taken in C++. So that's why I'm kind of revising it. Okay, so the structure is the collection of dissimilar data type elements. There you can see this is how we declare a structure, and this is the example where I have created S1 variable of struct student type. So obviously S1 will be having all these three attributes and the size 7 bytes. So this is the main thing, that the size of structure variable is equal to the sum of sizes of individual member types. तो इन सब की एडिशन जो होती है char1 into float 4, 2 4 plus 2 plus 1 7. Okay, so that's why the S1 is having, whenever any variable from the struct student will be created, it will be having the size 7 bytes. तो सभी मेंबर साइमल्टेनियसली आप एक्सेस कर सकते हो, मतलब इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं और ये मेमोरी में कुछ ऐसा स्टोर होगा और दिखेगा S1 वेरिएबल. But union are somewhat different. Though they are conceptually similar to structure, the second data type, second user defined data type पढ़ रहे हैं union. I have directly written the example because syntax is almost similar, just there is difference of the size. The size of the union key is equal to the size of largest member element. Now see here, char1 integer 2 float 4, which is the largest float type of, that is float mask. ये जो है, ये जो एलिमेंट है इसकी साइज लार्जेस्ट है, इसलिए 4 इस वेरिएबल की साइज होंगी. So this is another way of creating the variable. You can simply write after completing the break S1, और आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, union student S1, that is also acceptable. Okay, तो यहाँ मैंने दूसरा तरीका बताया है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, सिंपली राइटिंग S1. तो यहाँ S1 की जो साइज है वो 4 बाइट है. क्यों है? क्योंकि यूनियन की साइज हमेशा क्या होती है, साइज ऑफ द लार्जेस्ट नंबर से इक्विवेलेंट होती है. और अगर आप इसमें एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं या वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो वो जो मेमोरी होती है उसको सिर्फ 4 बाइट ही एलोकेट होते हैं वेरिएबल को, इसलिए वो वैल्यूज ओवरराइट होती जाती है. तो जब से पहले किया तो ये वहां पे लिखी गई, लेकिन जैसे ही दूसरा स्टेटमेंट आया ये वैल्यू ओवरराइड हो जाएंगे वेरिएबल 1, जैसे ही तीसरा स्टेटमेंट आएगा तो ये वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी और फाइनल आपको ये वैल्यू दिखेंगी यहाँ पे. तो इसमें वही स्पेस बार बार यूज होती है. ठीक है, तो जब आपको साइमल्टेनियसली एक्सेस नहीं करनी है मेमोरी, तो ऐसी केसेस में यू कैन यूज द यूनियन, और वो मेमोरी एफिशिएंट होता है क्योंकि वो कम मेमोरी में ही क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अनलाइक स्ट्रक्चर. And here are the differences that we have learned. Okay, so this much we completed in the last lecture. Let's begin with the third user defined data type, class. Okay, so we have already learned class, that class is a user defined data type which provides specification to the object. प्रोग्राम में हमने देखा है, जैसे जब हमने पर्सन का प्रोग्राम देखा है तो आपने वहां पे एट्रीब्यूट जो है ऑब्जेक्ट के age and name, okay, and then functions get data and display data. So what do we write inside the class? Whatever the object attribute and functions we want for that object, that we include inside the class. Okay, so that's why class is a user defined data type. आप उसमें कितने भी attributes लिख सकते थे, name, age, address, email ID. So this is all depends on user, no? That's why it is a user defined data type. And the class variables are known as objects. I'm not going to discuss it in much detail because we have already discussed and learned the examples and already to one program also. So just for a quick revision, you can see here the example is there is a class fruit. This is how we create the object from class fruit. Fruit space mango. So mango will have all the properties, all the behavior that are defined inside the class fruit. Let's begin with the next data type. This is the fourth user defined data type. Okay, I hope you have pen and paper with your copies and pen along with you.
you can write down all the headings, okay, that we have completed. It is expected that you must write the definitions, you must write the basic syntax and examples. Okay, so all of you please take off notes. मराठीत सांगू का? तुम्ही सगळ्यांनी डेफिनेशन्स, हेडिंग, टाइटल्स, सिंटॅक्स, एग्जाम्पल्स लिहिणे एक्सपेक्टेड आहे. ठीक है? Is it this language is comfortable to you? Hindi, English? Yes, everyone, please reply. झोपले का? रिस्पॉन्स. Yes, मध्ये ma'am. ओके ओके. जिथे तुम्हाला वाटत असेल की हे मराठीतही सांगा परत, so I will explain in Marathi. Now, hope you have your copies and pen with you. Just note down the definition. Enumerated data type, the fourth user-defined data type. This was also there in C, but let us explain and understand the differences enumerated data types having in C and C++. Okay, what is the difference? This is a user-defined data type which provides a way for attaching names to numbers and thereby creating symbolic constants. Okay, the main use of this data type is, अगर simple language में मैं कहूँ तो एक list आप बनाओगे इस data type के साथ, और वो जो list होगी उसको automatically कुछ numbers assign हो जाएंगे sequence में, और वो आप numbers उन variables को फिर as a constant कहीं भी use करो, वैल्यू असाइन करने के लिए, वैल्यू एक्सेस करने के लिए, इंक्रीमेंट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए. सो दे विल बिहेव एज अ सिंबॉलिक कांस्टेंट थ्रूआउट द प्रोग्राम. So this is the main use of enumerated data type. That's why it is enumeration. It assigns numbers to the names, to the words. That's why numbering. Numeration मतलब numbering करना. तो numbering किसे कर रहे हो? List of words को, वो भी sequence में. अब वो कैसे होते हैं यहाँ पे देखो. Second point, look at the second point. The enum keyword automatically enumerates a list of words by assigning them the values 0, 1, 2, and so on. Like, just like your array, by default starts with the 0. Like, so A of 0, A of 1, this is how we access the elements of the array. So similarly in enum also, what value do they take? जो value उनको assign होती है, being a symbolic constant, it is like 0, 1, 2, and so on. Okay, now here look at the syntax. enum, ये पहले आपको कीवर्ड लिखना है, स्पेस, यहाँ enum नेम आएगा, you can give any name, okay, इस डेटा टाइप का आप कोई भी यहाँ पे नेम लिख दो, then curly bracket open, then here list of the names, close the curly bracket, and then you can create some variables also from that type. So variable list यहाँ पे आएगी, and then semicolon. If you want to create variable there only, you can create, or this is optional also. So what is the basic syntax? Enum space, the name of the enum in curly brackets. Remember guys, this is curly brackets, huh? Not round brackets. ये curly brackets है, इसके अंदर आपको list of names लिखने हैं, और उसके बाद फिर आप अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो करें, या फिर यहाँ पे भी सेमीकोलन दे दिया तो चलेगा. End of the syntax. Now here you can see the example. Enum shape. So shape is the name given by me, means the programmer. जैसे यूजर चाहता है वो कोई भी नेम दे सकता है, लेकिन ये कीवर्ड आपको एज इट इज लिखना है. उसके बाद शेप, उसमें फिर मैंने वर्ड्स लिखे कुछ, सर्कल, कॉमा स्क्वायर, कॉमा ट्रायंगल, और फिर उसे क्लोज कर दिया और सेमीकोलन. अब इसका मीनिंग क्या हुआ है? तो यहाँ आपके 3 सिंबॉलिक कांस्टेंट बने, जिसमें सर्कल की वैल्यू रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम 0, स्क्वायर को असाइन हो चुकी है वैल्यू 1, और ट्रायंगल को वैल्यू असाइन होगी 2. और ये हमें ये दिखाई देगा क्या? नहीं, दिस इज बिहाइंड द प्रोग्राम, ओके, मींस द बैक एंड साइड. ओके, तो बैक एंड साइड में ये जहां कहीं भी क्रिएट हुए हैं मेमोरी में, उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0, 1, 2 ऐसे असाइन हो गई है. इसके लिए हम प्रोग्राम भी देखेंगे कि हम ये भी बोल सकते हैं ना कि ये कैसे पता चले, अभी सर्कल को 0 ही असाइन हुआ, स्क्वायर को 1, तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि यस, सर्कल एक्चुअली 0 वैल्यू ले रहा है, स्क्वायर की 1 वैल्यू है. सो टू चेक दैट, क्रॉस चेक दैट,
वी विल टेक वन प्रोग्राम ऑल्सो। लेकिन पहले आप इसके बेसिक रूल्स पढ़ लो कि क्या होता है enum इन C++। तो जो C में enum था उसमें उनका डिफॉल्ट जो ये रहता था वो इंटीजर टाइप रहता था, ओके। और C++ में ये डिफरेंस है कि जब भी आप कोई इन्यूमरेटेड डेटा टाइप लिखते हो तो वो खुद एक नया डेटा टाइप बन जाता है, ठीक है। enum में in C++ enum becomes a new user defined data type once you declare it. So what does it mean? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन जाना यानी कि आप इससे कोई भी नया वेरिएबल खुद बना सकते हैं अभी प्रोग्राम में। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे enum शेप ये enum लिख दिया है, enum का डेटा टाइप एक बार डिक्लेयर कर दिया, अब यहाँ शेप नाम का एक नया डेटा टाइप क्रिएट हो गया है। और शेप नाम का अगर डेटा टाइप क्रिएट हो गया है तो जस्ट लाइक योर एग्जांपल लाइक इंट ए, तो आप क्या लिखते हो, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। सिमिलरली आई कैन राइट शेप एलिप्स, सो दिस इज पॉसिबल विद C++, दैट वाज नॉट इन C। Okay, so this is the difference. You must note down that shape ellipse ये एक लिखना, इसका मतलब ये हुआ कि शेप टाइप एक डेटा टाइप बन चुका है इसमें, और जिससे आप वेरिएबल बना रहे हो एलिप्स। और अब एलिप्स क्या है, वेरिएबल ऑफ टाइप शेप, एंड यू कैन असाइन एनी वैल्यू अमंग दिस टू द एलिप्स वेरिएबल। आप उसको असाइन कर सकते हैं एलिप्स इज इक्वल टू सर्कल। इसका मीनिंग ये हुआ कि एलिप्स भी कौन सी वैल्यू होल्ड करेगा, 0। एलिप्स इज इक्वल टू स्क्वायर, तो एलिप्स की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इट कैन टेक एनी वैल्यू, जैसे आप इंटीजर ए लिखते हो मतलब ए को कोई भी वैल्यू दे दो इंटीजर के रेंज में, दैट इज द मीनिंग नो। वैसे ही शेप एलिप्स अगर आप बनाते हो तो एलिप्स को आप कोई भी वैल्यू दे दीजिए, सर्कल, स्क्वायर या ट्रायंगल। दिस इज द मीनिंग। ये डिफरेंस है सी और C++ के enum में। enum दोनों लैंग्वेजेस में था, बट C++ में ये डिफरेंस है कि C++ में एक बार इन्यूमरेटेड टाइप का डेटा टाइप अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं तो ये खुद एक नया डेटा टाइप बन जाता है जिसके आप वेरिएबल डिफाइन डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। हियर आर सम अदर एग्जांपल्स। enum कलर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, इसकी वैल्यू बता सकते हैं आप क्या होगी, रेड की होगी 0, ब्लू 1, ग्रीन 2, येलो 3, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड देन +1 +1 +1। इसमें आप देख सकते हो कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं मैंने, वैलिड, इनवैलिड। कलर बैकग्राउंड, यस वैलिड स्टेटमेंट। कलर टाइप का आप नया वेरिएबल बनाओ, चलेगा। कलर बैकग्राउंड इज इक्वल टू ब्लू, यस चलेगा। आपने क्या किया, नए वेरिएबल को इसमें से वैल्यू असाइन की, तो अभी बैकग्राउंड की वैल्यू हो गई 1, 0 1 2 3, so 1 valid. Color background is equal to 7, invalid. Why? Because integer टाइप की वैल्यू डायरेक्टली enum टाइप के डेटा में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि ये दो डिफरेंट डेटा टाइप्स है। यहाँ आपको कास्टिंग यूज करना पड़ेगा, और कास्टिंग के लिए आप क्या लिख सकते हैं, कलर बैकग्राउंड इज इक्वल टू कलर ऑफ, डेटा टाइप का नाम लिखो एंड देन सिंपली राइट, नो स्टेप, सिंपली राइट कलर ऑफ 7, मतलब 7 पहले इसमें कन्वर्ट होगा और फिर असाइन होगा बैकग्राउंड को। So that is okay with the C++. Int cannot be directly converted. However, you can write the statement like, इसमें आप जबकि ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये वैलिड होगा। अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं int c is equals to blue, ये चलेगा। enum हायर टाइप के डेटा टाइप में प्रमोट हो सकता है, इंटीजर डिमोट नहीं होगा enum में, ठीक है। लेकिन ये जो enum क्रिएट हुआ है ये हायर टाइप के डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंटीजर में हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा जब भी डेटा टाइप कन्वर्शन के आपने पढ़े होंगे कंपैटिबिलिटी, टाइप कंपैटिबिलिटी, तो जो लोअर डेटा टाइप है ना वो हायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो हायर है वो लोअर में डिमोट नहीं होते, प्रमोशन होता है, डिमोशन नहीं होता डेटा टाइप की केस में। तो ये जो है ना स्टेटमेंट ये वैलिड है, दिस इज वैलिड इवन इन C++, but this is not valid. Reverse, vice versa not possible. बाय डिफॉल्ट इन्यूमरेटर्स की वैल्यू कैसे होती है, 0 1 2 एंड सो ऑन, लेकिन हम इन डिफॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं अगर आप उसके सामने इक्वल्स टू सिंबल लिख के कोई वैल्यू लिखते तो। सी enum कलर रेड की वैल्यू है 0, ब्लू को मुझे 1 नहीं देना है तो मैं यहीं पे लिखूंगी ब्लू इज इक्वल टू 4।
ग्रीन को भी मुझे कोई अलग वैल्यू देना है तो ग्रीन इक्वल्स टू ए। इससे क्या होगा, जो उनकी डिफॉल्ट वैल्यू रहा करती थी, रेड की 0, ब्लू की 1 और इसकी 2, वो अभी नहीं रहेगी। रेड की 0 रहेगी क्योंकि आपने उसको कोई एक्सप्लिसिट वैल्यू नहीं की। यहाँ आपने इक्वल टू 4 लिखा तो ब्लू की वैल्यू ओवरराइट होके 4 आ जाएगी और ग्रीन की वैल्यू 6। तो ओवरराइड इज पॉसिबल। आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होगी वैल्यू ब्लू और ग्रीन की। तो उसके लिए आपको ये रूल ध्यान में रखना पड़ेगा, जो भी इनम में नेम्स होते हैं दे विल बी वन ग्रेटर देन द वन प्रीसीडेड, मतलब उसके पहले वाले से एक ज्यादा। तो यहाँ पे प्लस वन का रूल लगेगा। तो इनम कलर अगर आपने स्टार्टिंग में रेड इक्वल टू 5 डिफाइन कर दिया है, द वेरी फर्स्ट वेरिएबल, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, उसके नेक्स्ट वाले की वैल्यू है +1, तो 5 + 1 6। फिर अगर ब्लू की वैल्यू 6 है तो इसकी नेक्स्ट वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 + 1, so 7। ओके, so just remember this rule. Red is equal to 5, blue is equal to 6, and green is equal to 7 in this case. Students, please take down the notes, because this is not the thing you will remember just by looking at it. C++ also permits creation of anonymous names. Anonymous मतलब बिना नाम के। तो हियर enum लिखा, उसमें कोई नाम नहीं दिया और सिंपली लिखा ऑफ ऑन। तो बताओ अभी ऑफ की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो इसकी हो गई ऑफ की 0, ऑन की हो गई 1, और फिर आप अपने प्रोग्राम में कहीं भी कोई भी कॉन्स्टेंट क्रिएट करो, जैसे int switch1 इज इक्वल टू ऑफ, int switch2 इज इक्वल टू ऑन। जहां भी आप switch1 रेफर करोगे इट विल बी ट्रीटेड एज वैल्यू 0, जहां आप switch2 प्रोग्राम में रेफर करोगे इट विल बी ट्रीटेड एज वैल्यू 1। This is a simple program which is showing the how the value you can test over that enum shape जो अगर आपने क्रिएट किया है तो सर्कल की वैल्यू 0 ही है क्या, रेक्टेंगल की वैल्यू 1 है क्या और ट्रायंगल की वैल्यू 2। तो ये हम यहाँ क्रॉस चेक करने के लिए एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। So simply look at this program, hash include iostream using namespace std, enum shape. See, it is declared globally. You must remember this point. Okay, they are declared above the main because this is a user defined data type. You must create it before using it. तो अगर आप मेन में उसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो पता कैसे रहेगा कि इसका मीनिंग क्या है, इसलिए पहले उसका मीनिंग समझाओ कंपाइलर को, उसके बाद उसे यूज करो उस चीज को, राइट। सो पहले हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है अबाउट द मेन और फिर हम उसको मेन में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ ये क्रिएट हो गया सिंबॉलिक कांस्टेंट, सर्कल की वैल्यू 0, रेक्टेंगल 1, ट्रायंगल, ये तो हमें कंसेप्ट पता है इसलिए, लेकिन ये दिखेगा कैसे, ये हम अगर चाहते हैं कि किसी थर्ड पर्सन को या किसी दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट्स को अगर हम ये एक्सप्लेन करना है तो हम ये उसे कैसे बताएंगे, वो बोलेगा कि कैसे सर्कल की वैल्यू 0 ही है, ये कैसे बोल सकते हैं आप, यू आर नॉट गोइंग टू फिट इनसाइड द मेमोरी। सो फॉर दैट वी हैव प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स हमें बताएंगे कि सर्कल की वैल्यू 0 है, रेक्टेंगल की वैल्यू 1 ही है। And how we are going to do that, we will apply some switch case. Okay, one switch case over this code. See, int main, उसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कोड ऑफ टाइप इंटीजर और यूजर को बोलेंगे कि शेप कोड एंटर करो, ठीक है। वंस ही विल एंटर द कोड इट मस्ट डिस्प्ले दैट दिस इज अ कोड फॉर सर्कल। अगर 0 एंटर किया तो, अगर यूजर ने 1 एंटर किया तो आना चाहिए दिस इज अ कोड फॉर रेक्टेंगल। अगर यूजर एंटर करता है 2 तो वहां आना चाहिए दिस इज अ कोड फॉर ट्रायंगल। I am going to apply the while case, while loop. While loop में हम कंडीशन देखो क्या दे रहे हैं, कोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू सर्कल एम्परसेंड, एम्परसेंड मीन क्या होता है एंड कोड इज लेस देन इक्वल टू ट्रायंगल। मतलब आपका जो लूप है ये 0 से 2 के बीच में घूमते रहेगा। तो 0 से 2 जब तक वैल्यू है कोड की तब तक ये लूप चलेगा। तो 0 से 2 की अगर वैल्यू प्रोवाइड हो रही है फ्रॉम द यूजर साइड, देन एंड देन ओनली यू विल एंटर इनसाइड द व्हाइल लूप। देन वी आर हैविंग स्विच केस ओवर द कोड वैल्यू। अब ये कोड वैल्यू क्या करेगा, एक एक केस एग्जीक्यूट रन करेगा। केस सर्कल, ठीक है, केस सर्कल में हमने क्या लिखा है, दिस इज अ कोड फॉर सर्कल एंड ब्रेक, एक सिंपल आउटपुट स्टेटमेंट। केस रेक्टेंगल, इसमें प्रिंट होकर आना चाहिए दिस इज अ कोड फॉर रेक्टेंगल। सिमिलरली केस ट्रायंगल, दिस इज अ कोड फॉर ट्रायंगल। स्विच कोड से बाहर आ जाओ, उसके बाद व्हाइल में फिर से उसको एंटर शेप कोड करने को बोलो। अगर वो फिर से सही कोड एंटर करता है तो ये स्विच केस रन होगा। ये
केस चेक होगी, कंडीशन चेक होगी और फिर से आपका ये कोड run होगा. And then if you enter the number like 5, 10, 11, then you will suddenly come out of this while because condition 0 से 2 के बीच में आपका कोड नहीं रहेगा. अगर 11 है तो 0 ग्रेटर सी कोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू सर्कल, मतलब 0 से बड़ा और इक्वल, और ट्रायंगल मतलब 2 से लेस देन या इक्वल. 0, 1, 2 अगर ये 3 वैल्यू रही तो ही आपकी वाइल केस रन होगी, वाइल लूप रन होगा, अदरवाइज नो. तो अगर 11 नंबर के लिए रन होगा कि नहीं, तो आप बाहर आ जाएंगे और फिर आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा. Here I have shown an output. So we can see it. System this program. वही प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है. ओके, you can see this program. Just run this. Enter the shape code. Let me first enter the valid code 0. देखते हैं क्या आना चाहिए. अगर मैं 0 एंटर कर रही हूँ, हमारा इनम डेटा टाइप बोलता है कि एक बार अगर आप ये इनम लिखते हैं तो उसके बाद में जो लिस्ट में नंबर्स है उनको नंबर कैसे नंबर असाइन होते हैं, सर्कल 0, उसके बाद वाला जो नाम रहेगा उसे 1, उसके बाद 2. तो इसमें ये आना चाहिए कि 0 ही सर्कल को असाइन होना चाहिए नंबर. अगर मैं यहाँ 0 लिख रही कोड तो इसका मतलब है मेरी ये जो केस है ये रन होनी चाहिए यहाँ पे. So let us see, does it display? Yes. मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि सर्कल को सच में इनसाइड द मेमोरी 0 ये कोड असाइन हुआ है, क्योंकि कहीं भी आप प्रोग्राम में देख सकते हैं हमने कहीं सर्कल को 0 ये कोड असाइन नहीं किया. ये क्यों हुआ? बिकॉज इट इज ऑफ द डेटा टाइप इन्यूमरेशन. Okay, so automatically the numbers are assigned 0 to circle, 1 to rectangle, and 2 to triangle. Let me enter another code 1. Yes. Okay. Let me enter another code. Yes. Let me enter the number 4. 4 यहाँ पे आपकी while लूप जो है उसकी कंडीशन फेल हो रही है, फॉल्स आ रही है, तो ये प्रोग्राम विल एंड. तो इसे ये समझ में आ रहा है, हमने क्रॉस चेक किया. अगर इनम का कंसेप्ट बोलता है कि ऑटोमेटिकली सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स क्रिएट होते हैं, तो क्या सच में वैल्यू असाइन होती है? क्रॉस चेक करने के लिए ये एक सिंपल प्रोग्राम था. Let's move on. So we completed the built-in data types: integer, floating, void. User-defined data types, that is class, functions, enumeration, and what was the next? User-defined structures. Yes, structures, union, class, enumeration. Let's move on to the third basic data type, that is derived data type. Derived यानी कि combination or derived from the previous two. Arrays. Now, array, the basic about the array you have learned in C language. Let's just quickly revise the syntax and the meaning of array. Those who are not able to recall, please write down the definitions. इसमें कोई मतलब गिल्ट फील होने की बात नहीं है आप लोगों को. अगर आपको लगता है कि हाँ हमको तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, नहीं याद आ रहा है, तो रीड इट एंड प्लीज गो थ्रू दैट. ओके. अटेंडेंस आ गई क्या? अटेंडेंस आ गई होंगी. जस्ट मार्क द अटेंडेंस एंड कम बैक. Array is a fixed sequence of collection of elements of same data type that shares a common name. Okay. तो ये बेसिक डेफिनेशन है. अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स का कलेक्शन, दैट इज एन अरे. स्ट्रक्चर, डिसिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स का कलेक्शन. अरे सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स का कलेक्शन, मतलब इंटीजर तो सारे इंटीजर, फ्लोटिंग तो सारे फ्लोटिंग नंबर, कैर है तो सारे कैर, डबल ऑल डबल, दैट इज द अरे. So similar data type elements. That's it. Now general syntax is data type space name of the array inside the square bracket size. You have to provide the size. Semicolon. General syntax to initialize. कैसे initialize करें किसी array को? क्योंकि array एक collection of elements है, तो इसमें आप simply loop अप्लाई कर सकते हैं, for loop.
for I is equal to 0, I less than is equal to whatever the number size of the array is, I equal to 0, I less than equal to 10, and then provide the increment operator so that every value will be inputted from the user. तो पहले की वैल्यू एंटर करो, दूसरे एलिमेंट की वैल्यू एंटर करो, तीसरे एलिमेंट की, ऐसे वो चलते जाएगा 10. ठीक है. Application of array similar in C++ is similar to that of the C, but there is one difference. Okay, what is that difference? Only of the character arrays, how they are initialized. Okay, character arrays देखो कैसे initialize होते. Now see here, so here I have initialized a string. Okay, char type का एक लिया हमने string array having the size 3, and I have initialized it with the 3 sequence of characters. So x, y, z. ठीक है. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कितने कैरेक्टर्स है, 1, 2, 3, और साइज कितनी है इस अरे की, 3. सी में ये स्टेटमेंट वैलिड है क्योंकि सी का कंपाइलर अज्यूम करता है कि प्रोग्रामर ने /0 एमिट कर दिया. तो /0 मतलब नल कैरेक्टर. ये जो नल कैरेक्टर होता है /0, इट सिंबलाइजेस एंड ऑफ द स्ट्रिंग. तो ये जो होता है ना, ये होता है कि यहाँ खत्म हो गया. ठीक है, अरे खत्म हो गया, एंड ऑफ द स्ट्रिंग प्रोवाइडेड इन फ्रंट. सो /0 symbolizes that thing, and this is assumed by the C compiler. तो इसको काउंट करने की या अलग से इसकी साइज देने की यहाँ जरूरत नहीं होती इन C. लेकिन C++ में ये नहीं चलेगा. C++ में क्या होता है कि आपको /0 को भी काउंट करके उसकी साइज भी लिखनी पड़ती है. यानी बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो +1 आपको साइज देनी पड़ेगी. जितने कैरेक्टर्स आपके अरे में हैं, ये जो कैरेट टाइप का अरे, इसमें आपको अगर साइज लिखनी है तो यू विल हैव टू गिव द साइज एज +1. तो अगर आपके इसमें 3 कैरेक्टर है तो यहाँ आप लिखेंगे 4 साइज डिक्लेयर करने के टाइम. अगर आपके इसमें XYZA होता, मतलब 4 कैरेक्टर्स होते, तो यहाँ साइज आती 5. तो /0 काउंट करना होता है C++ में क्योंकि वो अज्यूम नहीं होता बाय द कंपाइलर. ठीक है, उसको अलग से काउंट करके उसकी साइज यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी व्हाइल डिक्लेयरिंग. दिस इज द ओनली डिफरेंस. जबकि सी में आप ये नहीं दिए तो भी चलेगा. इट इज अज्यूम्ड बाय द कंपाइलर, सो यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, and here that will be equivalent to your size. But here the size of the string +1 will be the size of this array. So /0 needs to be counted in case of C++. यही एक डिफरेंस है. बाकी सारे कंसेप्ट जो है सी में जो थे अरे के, वही C++ में भी उसकी सेम फंक्शनलिटी अप्लाई होती है. ओके. डिराइव डेटा टाइप में हमारा सेकेंड डेटा टाइप क्या है, फंक्शंस. तो फंक्शंस वी हैव ऑलरेडी लर्नड. सिर्फ हमें ये देखना है इसमें कि फंक्शंस दे हैव अंडरगॉन मेनी चेंजेस, क्योंकि हम अलग अलग कंसेप्ट इसमें यूज करने वाले हैं. फ्रेंड फंक्शन, ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन, जो सी में नहीं थी, एंड दैट वी विल लर्न इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर. So for now you just remember that C और C++ के फंक्शंस में थोड़ा चेंजेस आया है, और यहाँ फंक्शंस के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं. ठीक है, इन C++ that was not there in C. और ये यहाँ पे एक बेसिक सिंटैक्स लिखा है. फंक्शन मीन्स ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स performs together a task. Every C++ program has at least one function, which is main, void, main statement. Or what we can do here is, see, the standard practice says that you must write int as a return type. Okay, what your program will run with the void also, but standard practices of C++ is that you must give the int as a return type for the main function in C++ program, because some compiler do support the void also. That is the reason. It depends on the compiler. Late attendance submitted. फटाफट कर नहीं सकते क्या आप लोग? ये जो लेट सबमिट करने वाले होते हैं ना, दे आर नॉट हियर. दैट इज आपका वही इंप्रेशन पड़ेगा फिर मेरे ऊपर कि आप लोग यहाँ पे हो ही नहीं. Okay, just let's look at the pointers. A pointer is a variable that holds a memory address
एंड जनरल सिंटैक्स टू डिक्लेयर द पॉइंटर इज, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर हियर. डेटा टाइप स्टार पॉइंटर नेम. लेट्स लुक एट द एग्जांपल व्हाट वी कैन डू विद पॉइंटर्स. पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है. दैट्स व्हाई उसको पॉइंट करता है ना, वो किसी इसलिए पॉइंटर बोलते हैं. तो int स्टार p, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे मैंने लिखा है कमेंट लाइन में. ठीक है, p एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल बन गया जो अभी इंटीजर टाइप की वैल्यू के एड्रेस होल्ड कर सकता है. int x इक्वल्स टू 10, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर टाइप का जिसमें वैल्यू प्रोवाइड की x. अगर सपोज उसका एड्रेस 200 है तो हम एक ऐसा स्टेटमेंट लिख के p इज इक्वल टू %x, तो यहाँ क्या हुआ, x का एड्रेस 200 असाइन टू a टू p पॉइंटर. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अभी आपका जो p है ना वो पॉइंट करेगा किसे, x को. मतलब ये जो 200 एड्रेस है ये इसका मीनिंग है पॉइंट करना. मतलब p इज अ पॉइंटर वेरिएबल पॉइंटिंग टू x. का बेसिक मीनिंग ये है कि p एक ऐसा वेरिएबल है जो x का एड्रेस होल्ड कर रहा है. पॉइंट कर रहा है मतलब एड्रेस को होल्ड कर रहा है, नॉट द वैल्यू. And these are the data types of the pointers that are new in C++. Okay, that we will learn. We are going to learn during the next lecture because we can't complete it right now. So just मैं आपको एक basic चीज इसमें बता देती हूँ. Constant pointer. Secondly, you are going to learn pointer to a constant. And thirdly, constant pointer to a constant. यहाँ जो पहली चीज लिखी है constant pointer, इसका मीनिंग ये है कि वो जो पॉइंटर होगा वो कॉन्स्टेंटली एक ही एड्रेस पे पॉइंट करता रहेगा, तो उसका एड्रेस चेंज नहीं होगा. सेकेंडली, पॉइंटर टू ए कांस्टेंट, मतलब पॉइंटर जिसे पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू चेंज नहीं होगी. ठीक है, वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. एंड कांस्टेंट पॉइंटर टू ए कांस्टेंट मतलब ना पॉइंटर खुद का एड्रेस चेंज करेगा, ना जहां वो पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू चेंज होगी. सो these are the three types of the pointers that are used in C++. that we will learn in the lecture on Thursday, जिसकी लिंक स्ट्रीम पे शेयर होगी क्योंकि वो कंबाइंड लेक्चर है. तो ये आप लोग दोनों सेक्शन साथ में करने वाले हैं. ठीक है, and I will explain this with the help of example. Okay, hope you have noted down most of the points. If anyone is having doubt, then ask me. Hope you have written the program also. जिन्होंने नहीं लिखा होगा तो ये प्रोग्राम लिख लो और you can leave the mute. कुछ भी डाउट है तो यहाँ पे चैट बॉक्स में डालो एंड राइट डाउन दिस प्रोग्राम. मैम, हेलो मैम. हाँ, यस हेलो. यस नेटवर्क इश्यू की वजह से मेरे अटेंडेंस जनरेट हो गए हैं. व्हाट इज योर नेम? ऋषिकेश इंगोले. ओके, यू आर इन द लेक्चर. यस यस. ओके ओके, आई विल मार्क योर अटेंडेंस. ऋषिकेश इंगोले. वो नेटवर्क इश्यू था थोड़ा. See, I am going to consider even if you mark the attendance up to 5 minutes, means 12-5 तक भी चलेगी. But if you are marking attendance by 1, 2, that is not going to be considered. थैंक यू मैम. Yes, तुम्हें leave to meet. Next lecture है ना? Those who have not written the program, please write down. और अगर आपको आज के लेक्चर से कोई और भी स्लाइड लगती हो तो अभी बोलिए आप मुझे. I will show it. You just note down.